इनोवेशन ना हो, कुछ नयापन लेके आओ। So is this close test clear to everyone? Okay, ये एसएससी में पूछी गई थी, ये एसएससी में पूछी गई थी। तो वेरी गुड, आपको पहले ही क्लोज टेस्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आई है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अगले क्लोज टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलो, अभी ये थोड़ा सा ना मस्त है, ये थोड़ा सा मस्त है, ध्यान से पढ़ते। ओके चलो, economic development of a country is dash to their industrial growth. In a developing country like India, small-scale industries play a significant role in economic development of the country. They are a dash segment of Indian economy in terms of their contribution towards country's industrial production, exports employment, and creation of an entrepreneurial base. These industries, by and large, present a stage in economic from traditional to modern technology. Small industry plays a very important role in widening the base of entrepreneurship. The development of small industries dash an easy and effective means of achieving broad-based ownership of industry, the diffusion of enterprise and initiative in the industrial field. Given their importance, the government policy framework right from the first plan has dashed the need for the development of SSI, मतलब SSI मतलब small scale industry जो ऊपर लिखा है sector, keeping in view its dash importance in the overall economic development of India. Okay, तो ये तो पढ़ने की बात, हमें इतना तो पता चला है कि भाई ये इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है और किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्टूडेंट्स कौन सी है? Get this passage, okay, or this I won't say passage. This close test is talking about small scale industries. Okay, this close test is speaking about small scale industries. Okay, तो अभी पहला क्या है? The economic development of the country is dash to the industrial growth. तो dash मतलब क्या आएगा वहाँ पर? मिक्स्ड आंसर आ रहा है। Okay, economic development of a country is dashed to the industrial growth. Related, relating, concentrated, resembled. Relating आएगा भाई, relating. Relating तो बिल्कुल नहीं आएगा। Relating क्या है भाई? Relating क्या है? Noun है, noun. Okay. Economic development of a country is dashed to the industrial growth. In a developing country like India, small-scale industries plays a significant role in economic development of the country. Okay, तो पहली बात तो economic development of a country is dashed to the industrial growth. भाई related आएगा, कहाँ पर हो? कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। ओके, रिलेटेड है भाई, रिलेटेड है, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ का संबंध है। कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ से आ गया? कॉन्टेक्स्ट देखो पैसेज का भाई, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट ध्यान से देखना। The economic development of a country is dashed to the industrial growth. In developing country like India, small scale industry plays a significant role. Important role play कर रहे हैं। ओके, लेकिन concentrated ऐसा किधर बोला गया है? ओके, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ओके, पहला ही गलत मत करना। काफी सिंपल, ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज रिलेटेड टू देयर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मतलब कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके इंडस्ट्रियल ग्रोथ से संबंधित है। ओके, ना कि कॉन्सेंट्रेटेड। In a developing country like India, small-scale industries play a significant role in economic development of the country. ठीक है भाई, they are a dash segment of Indian economy in terms of their contribution. In their contribution towards country's industrial production, blah 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 blah. तो क्या है भाई? They are a dash segment. Very good students, very good. Okay, they are a कौन सा segment होगा भाई? पहले भी तो mean मतलब क्या है? mean मतलब average. mean मतलब क्या होता है? average.
तो एवरेज है कि भाई एवरेज तो बिल्कुल नहीं है, पहले ही बोला दैट इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अभी सिग्निफिकेंट रोल का मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल, काफी महत्व है उसका, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो एवरेज तो नहीं होगा, इनसिग्निफिकेंस भी नहीं होगा भाई, सिग्निफिकेंट ऊपर बोला है और फटाक से नीचे इनसिग्निफिकेंट क्यों बोलेगा, कॉन्टेक्स्ट भी नेगेटिव में नहीं जा रहा है। विजुअल रोल भी नहीं, ओके डेफिनेटली वाइटल रोल, वाइटल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, वाइटल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट रोल। हम लोग बोलते हैं ना वाइटल विटामिन एंड मिनरल्स, ओके, तो इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स, ओके। वाइटल रोल मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप क्लियर होगा। कुछ डाउट रहेगा तो पूछ देना, डाउट रहेगा तो पूछ देना। चलो, समझ में आया तो आगे बढ़ते, समझ में आया तो आगे बढ़ते। Okay. These industries by and large represent a stage in economic dash from traditional to modern based technology. Okay. क्या these industries plays by and large represent a dash, okay, in economic, these industries by and large represent a stage in economic dash from traditional to modern technology. क्या होगा इस केस में? Okay, options देखते भाई। These industries by and large represent a stage in economic translation, transferring, transition, transitional. क्या होगा भाई? डेफिनेटली ए नहीं होगा, सी होगा आंसर, सी। ट्रांसलेशन मतलब क्या है, इंग्लिश को मराठी में, मराठी को इंग्लिश में ट्रांसलेट बोलते हैं। थोड़ी भाषा थोड़ी ना कि ट्रांसलेट करे भाई, ट्रांसफर कर रहे क्या भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ट्रांसफर तो नहीं करेंगे, ओके, ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन, ओके। these industries by and large represent a stage in economic transition, ओके। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन है कहाँ से, ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक फेज होता है, वो उस पूरे फेज की बात है, ओके। हेंस इट विल बी ट्रांसलेशन, नहीं आयुषी, ट्रांजिशन होगा, ओके। ट्रांसलेशन हम लोग भाषाओं का करते हैं, ओके। चल, स्मॉल इंडस्ट्रीज, small industries play a very important role in widening the base of entrepreneurship. The development of small industries dash an easy and effective means of achieving broad-based ownership of industry, the diffusion of enterprise and initiative in the industry. क्या होगा? The development of small industries offers differs क्या होगा? पॉजिटिव बोल रहा है कुछ, डेफिनेटली। हाँ, अभी इसमें थोड़ा सा है ना कैच है, ओके। डिफर मतलब क्या, अलग, डिफर का मतलब क्या है, अलग, मतलब आई डिफर फ्रॉम यू मतलब डिफरेंट। तो पहली बात तो ऑफर आएगा कि ऑफर्स आएगा, बहुत लोगों ने ऑफर्स बोला, बहुत लोगों ने ऑफर्स बोला, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑफर आएगा, ऑप्शन ए है भाई। मैंने पहले ही बोला था कि वर्ब के आगे एस और अगर यस लगा तो वो सिंगुलर होता है। चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के थक गया, ओके। और वर्ब के आगे जब एस और ईएस नहीं लगता तब वो प्लूरल होता है। हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी किया, तो मुझे बात बताओ, ओके। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज इस केस में सिंगुलर है कि प्लूरल है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो भाई प्लूरल है,
इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लूरल है। ओके, और प्लूरल के बाद ओके वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, तो ऑफर प्लूरल वर्ब है ना भाई, ऑफर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है ना, यस और नो, जस्ट टेल मी। तो बात समझ में आई, एग्जामिनर पागल नहीं है एस वाला ऑप्शन देके और दूसरा विदाउट एस वाला ऑप्शन देके, उसको पता है कि गलती यही करेंगे। क्या हुआ शीतल, नहीं समझा आपको? शीतल मैंने क्या बोला था, ओके लास्ट टाइम भी मैंने वर्ब पढ़ा थे, बोला था कि अगर वर्ब के आगे एस और ईएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब के आगे एस और ईएस नहीं लगता है तो वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ओके द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, ओके अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो आया है, इंडस्ट्रीज ये तो मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी तो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट्स प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, और वर्ब प्लूरल है वो कौन बता रहा है, ऑफर बता रहा है। ऑफर्स तो सिंगुलर होगा ना, क्योंकि उसके आगे एस लग रहा है। ठीक है शीतल, ओके आई होप समझ में आया होगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Given their importance, the government policy framework, right from the first plan, has dash need for the development. Okay, given their importance, okay, पहली बात तो चेंज करके ठीक चेंज नहीं किया, ओके चेंज कर, ये भी आपके एग्जाम का ही उठा मैंने। ओके, given their importance, the government policy framework, right from their first plan, has dash the need. ओके, क्या किया, हाईलाइटिंग की है, हाईलाइटेड की है, हाइटन की है, डिमीनिंग की है, क्या किया? पहली बात तो हाईलाइटिंग कैसे होगा, हाईलाइटिंग गलत है, अभी थोड़ी ना हाईलाइटिंग कर रहे हैं, हाईलाइटिंग हाईलाइट कर चुके हैं भाई, हाईलाइट कर चुके हैं। गिवन देयर इंपॉर्टेंस द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लान, तो फर्स्ट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लान हैज हाईलाइटेड, हाईलाइट किया हुआ है, पास्ट टेंस में जा रहा है ना सर, हैज हाईलाइटेड, और हैज के बाद तो वी3 फॉर्म आता है, तो मैंने टेंसेस में पढ़ा है, हैज के बाद वी3 फॉर्म आता है, ये मैंने टेंसेस में आपको पढ़ा है, तो हाईलाइटेड होगा ना कि हाईलाइटिंग। हाइटन का मतलब क्या है, उठाना, तो ये उठाया है क्या? ओके, गवर्नमेंट ने ये उठाया है क्या भाई, बिल्कुल नहीं उठाया, उसको हाईलाइट किया, उसको हाईलाइट किया। ओके, डिमीन करना मतलब क्या, डिमीन करना मतलब क्या, किसी को कम दर्जा देना, किसी को बोलना कि भाई ओके तू नहीं कर सकता, डिमीन मतलब किसी को बेइज्जत करना। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि काफी मन लगा के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ओके, होना तो चाहिए। ओके चलो आगे देखो क्या होता है। First one has highlighted the need for development of SSI, the small scale industry sector, keeping in view its dash importance in the overall economic development of India. तो कौन सा importance है भाई, keeping in view its कौन सा importance, strategy, less complex या strategic? लेस इंपॉर्टेंस होगा क्या बकवास की तरह बात कर रहे हैं? ओके, लेस इंपॉर्टेंस कैसे होगा, कीपिंग इन व्यू इट्स लेस इंपॉर्टेंस, भाई इंपॉर्टेंट है तो लेस क्यों होगा ये, इकोनॉमिक। ओके, कैसा मतलब वैसे समझ में नहीं आ रहा है क्या इतना बेसिक इंग्लिश? ओके, जिन्होंने लेस आंसर दिया मैं उनको बात कर रहा हूँ, और उनको पता है कि किसने आंसर दिया। ओके भाई, स्ट्रेटेजिक आएगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक का मतलब ही है इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, और स्ट्रेटेजी नाउन है, और ये जो स्ट्रेटेजिक है ये एडजेक्टिव है। ओके, इम्पोर्टेंस तो पहली बात तो नाउन है,
तो नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड तो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो लेस इंपॉर्टेंस तो गलत है, कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंस भी गलत है भाई, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना। ओके, आई होप इतना तो समझ में आना चाहिए। आपने शायद पढ़ाई नहीं की है, आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, इसके लिए ये इतनी दिक्कतें आ रही है। ओके, प्लीज ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करो। ओके, ये काफी मैंने सिंपल पैसेज उठाए, मैंने काफी सिंपल पैसेज उठाए जानबूझ के, क्योंकि आपका थोड़ा आत्मविश्वास आगे बढ़े। ओके, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट पैसेज। पैसेज की कोई कमी नहीं है, क्लोज टेस्ट बहुत है हमारे पास। ओके, ये करना चाहोगे कि एक साथ करेंगे? चलो ये करते हैं अभी, ध्यान से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज अ डैश सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी and credit plays an important role in increasing agriculture production. Availability and access to adequate, timely, and low-cost credit from institutional sources is of great dash, especially to small and marginal farmers. Along with inputs, credit is essential for establishing sustainable and dash farming systems. Most farmers are small producers engaged in agricultural activities in areas of widely dash potential. Experience has shown that easy access to financial services at affordable cost dash affects productivity, asset formation, and income and food security of the rural poor. A major concern of the government, therefore, is to bring all the farmer households within the banking dash and promote complete financial inclusion. The government has initiated several policy measures in improve improving the accessibility for improve measures to improve the accessibility of farmers to institutional sources of credit. तो क्रेडिट के बारे में बात की है भाई, क्रेडिट का मतलब क्या होता है मुझे पहले एक बात बताओ, सब लोग मुझे बताओ। ओके, मनाली, मंगेश, ओके, आयुषी, शीतल, क्रेडिट, ओके, वेरी गुड। ओके, so basically with respect to this close test, okay, शीतल क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? मृणाली क्रेडिट से अब तक काय सांग जरा मला? तृप्ती, भरत, किरण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट? सो गए हो क्या सब भाई? सबके सब जगह हो कि सो गए? Sir, service before payment. शिवानी, शिवानी तू लेट जाऊन केलं का शिवानी? शीतल क्या होता है बेटा? अभी क्या आपको इनविटेशन कार्ड भेजू आंसर देने को? अक्षय इंगळे काय असतं क्रेडिट सांग जरा. ओके, अच्छा अक्षय ने बोला है, ओके ओके, no problem Shivani, but you have missed a couple of close tests today. Okay, I will just say that. Okay, क्रेडिट मतलब सही है, बोरोइंग्स, ओके, पैसा,
पैसे का बोरोइंग. Credit is nothing but borrowing of money. Okay, so agriculture is a dash sector of our economy and credit plays an important role in increasing agriculture production. तो एग्रीकल्चर किस हिसाब का सेक्टर है? इंटीग्रल सेक्टर है, सेंटर सेक्टर है, डोमिनेंट सेक्टर है या प्रूवन सेक्टर है? क्या होगा भाई? ओके, इंटीग्रल आएगा. इंटीग्रल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रल का मतलब क्या? इंपॉर्टेंट है. ओके, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट. तो एग्रीकल्चर है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है. कुछ लोगों को ये भी ले सकता है कि सर डोमिनेंट भी होगा, डोमिनेंट भी होगा. कुछ लोगों को ऐसे भी लग सकता है, लेकिन आगे जाके देखेंगे ये डोमिनेंट है कि इंपॉर्टेंट है. डोमिनेंट मतलब क्या कि जो सबसे ऊपर हो. डोमिनेंस मतलब क्या? अपना पूरा हुक्म दिखाना. इंटीग्रल मतलब क्या कि इंपॉर्टेंट हो. ओके, दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. दोनों में थोड़ा सा यस अक्षय, दोनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है. तो आगे जाके देखेंगे. Availability and access to adequate, timely, and low-cost credit from institutional sources is of dash, especially to smaller marginal farmers. क्या होगा कि पैसों की जो जरूरत है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को क्या होगी? इज ऑफ ग्रेट व्यू होगी, इंपॉर्टेंस होगी, अर्जेंसी होगी या सोर्स होगा? डेफिनेटली इट विल बी ग्रेट इंपॉर्टेंस. इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? शिवानी, इथपर्यंत का डाउट आहे तुला? स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? शीतल, आपको क्लियर है? कौशिक, क्या नहीं समझा आपको? अच्छा, ऑल थिंग इज क्लियर है. ओके, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट मतलब भाई अभी नीचे के जो ब्लैंक्स के लिए जो ऑप्शंस है वो along with their inputs, credit is essential for establishing sustainable and dash farming system. Profitable farming systems. Okay, profitable. प्रॉफिटेबल की बात कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, आगे जाके कॉन्टेक्स्ट देखते, आगे जाके कॉन्टेक्स्ट देखते. ओके, आइसोलेटेड तो बिल्कुल नहीं, वो आइसोलेटेड फार्मिंग सिस्टम तो नहीं रखना है. ओके, अपोर्शन भी हो सकता है, प्रॉफिटेबल भी हो सकता है भाई. ओके, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल ही हो ना, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल ही हो. ओके, अपोर्शन भी हो सकता है. यस और नो. पहले आगे जाके पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. फर्स्ट लेट अस सी कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलो. मोस्ट फार्मर्स आर, याद रखते कि ये थर्ड सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं. मोस्ट फार्मर्स आर small producers engaged in agricultural activities in areas of widely dash potential. क्या आएगा भाई? Okay, most farmers are small producers engaged in agricultural productivity. वाइडली बोल रहे हैं ना, वाइडली मतलब बहुत सारे. वाइडली वेरिंग पोटेंशियल आएगा. वाइडली बोल रहे हैं ना, तो वाइडली मतलब क्या? बहुत सारे. ओके, मोस्ट नहीं आएगा, वाइडली बोल रहे हैं ना. इट इज इन एरियाज ऑफ वाइडली वेरिंग पोटेंशियल, मतलब बहुत सारे फार्मर्स अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं जिनकी पोटेंशियल अलग अलग है. बहुत सारे फार्मर्स अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं जिनकी पोटेंशियल अलग अलग है. तो वाइडली वेरिंग पोटेंशियल. ओके, वाइडली वेरिंग. वेरिंग का मतलब बेटा, वेरिंग का मतलब बेटा चेंजिंग. चेंजिंग. वेरिंग मतलब अलग अलग, चेंजिंग. ओके,
उसके पहले ये जो अपोर्शन है, ओके, अपोर्शन है, ओके, ये क्यों नहीं आएगा? पहली बात तो अपोर्शन क्यों नहीं आएगा? ओके, बिकॉज अपोर्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अपोर्शन का मतलब लिख लो ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं चाहे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसका मीनिंग किसी को नहीं पता होगा। और दूसरा एब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा भाई? एब्जेक्ट का मीनिंग जरा बताना क्या होगा? ओके, यस, एब्जेक्ट मीन्स लो। एब्जेक्ट मीन्स लो। ओके, तो लो पोटेंशियल तो नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड पोटेंशियल फार्मिंग जो था 63 का, डिस्ट्रीब्यूटेड फार्मिंग सिस्टम्स, ये भी नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल। एंड आई एम प्राउड कि बहुत लोगों ने सही जवाब दिया। ओके, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था कि थर्ड का आंसर क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि एब्जेक्ट मीन्स लो, अपोर्शन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अपोर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। Experience has shown that easy access to financial services at affordable cost affects productivity, asset formation, and income and food security of the rural sector. Experience क्या बता रहा है कि easy access to financial services at affordable cost not affect होगा, seriously affect होगा, must affect होगा, positively affect होगा, क्या होगा? ओके, क्या होगा? नॉट अफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। सीरियसली होगा क्या? सीरियसली, सीरियसली अफेक्ट होगा क्या? सीरियसली अफेक्ट होगा तो सेंटेंस नेगेटिव में चाहिए। सीरियसली अफेक्ट होगा तो सेंटेंस में कुछ तो नेगेटिव चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं, एक्सपीरियंस हैज शोन दैट इजी एक्सेस, एक तो एक्सेस इजी होगा, इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज अगर इजीली एक्सेसिबल है, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे अगर वो एक्सेसिबल है, तो वो डेफिनेटली पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। डेफिनेटली वो किस हिसाब से अफेक्ट करेगी? पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोजनेस का, ओके, कॉन्सेप्ट, ओके, आपको पता होना चाहिए। ओके, नेचर क्या जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है, ये सेंटेंस का नेगेटिव जा रहा है। ओके, इट अफेक्ट्स, पॉजिटिव अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, एसेट फॉर्मेशन, आगे ब्ला ब्ला ब्ला। The major concern of the government therefore is to bring all the farmer households within the banking dash and promote कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंकिंग लोन्स में लेके आएंगे, बैंकिंग के फोल्ड में लेके आएंगे, प्रीमाइसेस में लेके आएंगे, एरिया में लेके आएंगे, किधर लेके आएंगे? ओके, ये खाली लोन की बात नहीं कर रहे, आगे जाके देखो क्या बोल रहा है, एंड प्रमोट कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सेवरल पॉलिसी मेजर्स इन टू इंप्रूव, मैंने बोला इन इंप्रूव नहीं होगा, टू इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फार्मर्स टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? विद इन द बैंकिंग फोल्ड होगा, फोल्ड। अब ये फोल्ड का मतलब वो घड़ी नहीं है। ये फोल्ड का मतलब क्या? वो घड़ी नहीं है, घड़ी। ये फोल्ड इज नॉट घड़ी। तो इस फोल्ड का मतलब घड़ी नहीं है। ये प्रीमाइसिस मतलब क्या? वो क्या बैंकिंग, उसका मेजर कंसर्न क्या है कि उसको प्रीमाइसिस में देखे है फार्मर्स को, कि भाई हमारे प्रीमाइसिस में आ जाओ, बैंकिंग के इधर, कैनरा बैंक के इधर रहना शुरू कर दो, या फिर यहाँ पर ये बैंक है, या इसके एरिया में लेके आओ। उनको एरिया में लेके आना है क्या भाई? बैंकिंग के एरिया में लेके आना है क्या? एरिया में लेके आना है, बैंकिंग के फोल्ड में लेके आना है। अभी फोल्ड मतलब क्या? बैंकिंग के कामकाजों में इंक्लूड करना है। दे वांट टू ब्रिंग विद इन द बैंकिंग फोल्ड। ओके, विद इन द बैंकिंग फोल्ड मतलब क्या? उस बैंकिंग के कामकाजों में उनको लेके आना है, उन बैंकिंग के कामकाजों में लेके आना है, उसके हिसाब से यहाँ पर फोल्ड आएगा। क्लियर है? ओके, लोन देने के लिए नहीं। ओके,
लोन देने के लिए नहीं, गवर्नमेंट इज देयरफॉर टू द फार्मर हाउस होल्ड द बैंकिंग लोन्स, बैंकिंग लोन्स के लिए लेके आएगी क्या? नहीं, बैंकिंग के फोल्ड में लेंगे, बैंकिंग के कामकाज होंगे उनको इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला ना शीतल की फोल्ड मतलब क्या, कामकाज में इंक्लूड करना। ओके, फोल्ड मतलब उसके पूरे कामकाज के अंदर लेके आना। ओके, तो मजा आया क्लोज टेस्ट सॉल्व करके? ये वाला क्लोज टेस्ट कैसा था स्टूडेंट्स, मजा आया कि नहीं थोड़ा बहुत? ओके, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? ओके स्टूडेंट्स, डिड यू लाइक दिस क्लोज टेस्ट? मतलब ये जो भी हम लोग ने 3 किए हैं, ऑब्वियसली और 2-3 करेंगे, लेकिन मजा आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है, नए नए शब्द का मीनिंग पता चल रहा है। ओके, कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है कि भाई पैसेज का कॉन्टेक्स्ट किस हिसाब से जा रहा है, किस हिसाब से नहीं जा रहा है। ओके, आपको भी पता चल रहा है कि आपको रीडिंग में कितना और काम करना चाहिए। ओके, यस और नो? तो इसके लिए मैं जानबूझ के क्लोज टेस्ट लेके आया, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी आपका क्लोज टेस्ट ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका क्लोज टेस्ट ही होगा, जो क्लोज टेस्ट की हम लोग जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम होगी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका क्लोज टेस्ट ही होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके, तो नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्लोज टेस्ट। चलो भाई, क्लोज टेस्ट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, देखना चाहोगे कितने मेरे पास? एक, दो, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा। देखा कितने सारे हैं हमारे पास? ओके, बहुत है अपने पास। ओके, प्रैक्टिस करना चाहोगे तो प्रैक्टिस तो हमारे पास रद्दड़ जैसी है। ओके, मैंने खुद का भी इंग्लिश इस हिसाब से ही अच्छा किया है। प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अगर एक ही चीज बहुत बार करोगे तो वैसे भी आनी है। ओके, प्रैक्टिस की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये पीडीएफ में अभी सेंड नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, अभी सेंड नहीं करूंगा। ओके, ये मैं पूरा क्लास में लेने के बाद ही सेंड करूंगा, ये मैं पूरा क्लास में लेने के बाद ही सेंड करूंगा। हाँ, मैंने बोला ना सीधे, क्लास में मैं डिस्कस करने के बाद ही सेंड करूंगा, टेंशन मत लो, ऐसा नहीं कि नहीं दूंगा भाई, तुम्हारे लिए तो बना है, तुम्हारे लिए तो बना है। ओके, तुम्हें सेंड नहीं करूंगा तो और किसको सेंड करूंगा? ओके, ओके, चलो क्लोज टेस्ट को क्या बोल रहा है? इंडियाज प्राइवेट स्कूल इंग्लिश स्पीकिंग अर्बन elite may attract global attention, but they are inside, but they are in the dash. The vast majority of Indian children dash government-run primary school in rural areas. In 2007-2009, rural area dash for more than 77% of India's primary school, of whom over 77 were enrolled in government-run schools. This is where we see some of the dash nation's challenges. India's education system has not achieved strong learning outcomes for reasons that are as diverse and dash as the country itself. Key among these reasons is poor quality teaching, which results from a multitude of factors. Multitude मतलब बहुत सारे, multitude मतलब बहुत सारे. Okay. So now India's private school, English-speaking urban elite may attract global attention, but they are क्या? माइनर में है, मेजर में है, मेजोरिटी में है कि माइनॉरिटी में? क्या होगा आप बताओ अभी? इंडिया की प्राइवेट स्कूल भले बड़े बड़े अमीर सालों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या है? ओके, बट दे आर इन द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, माइनर नहीं होगा, माइनॉरिटी होगा, बट दे आर इन द माइनॉरिटी। ओके, वो कम संख्या में है क्योंकि प्रोनाउन दे के बारे में बता रहे तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और माइनॉरिटी एडजेक्टिव है, माइनर एडवर्ब है, सॉरी माइनर जो है। ओके, वो क्या है? माइनर भी एडजेक्टिव ही है। ओके, लेकिन बट दे आर इन द माइनर, ये सही नहीं है, दे आर इन द माइनॉरिटी। हम लोग बोलते हैं ना वो मेचोरिटी में, ये माइनॉरिटी में, ये माइनर में, ये मेजर में, ऐसे नहीं बोलते। ओके, तो बात की गहराई को समझो, तो माइनॉरिटी होगा।
ये माइनॉरिटी कहाँ से है, क्योंकि आगे क्लियरली बोले कि भाई 77% पढ़ रहे हैं, अगर 77% गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं तो बाकी के बच्चे डेफिनेटली माइनॉरिटी में ही होंगे ना, इसके लिए मैंने बोला। आगे भी बोला था वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन डैश, डैश क्या होगा, गो, फॉलो, अटेंड, अटेंडेड, क्या होगा, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन क्या करेंगे, स्कूल को हम लोग क्या करते हैं, अटेंड करते हैं भाई, स्कूल को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वी अटेंड स्कूल, यस और नो, सिर्फ जाते हैं, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन चिल्ड्रन गो, ओके गो तो नहीं होगा, अटेंड होगा ना भाई, अटेंड भी तो होना चाहिए, यस और नो। आयुष जी समझ में आ रहा है, शिवानी कहते का तुझा रिप्लाई काहीच नाही येते, मंगेश, शिवानी, आई होप समझ में आ रहा है, अरे सिर्फ समझ में आ रहा है क्या भाई, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि रिप्लाई कोई नहीं कर रहा है, अश्विनी कहते का तुझा तुझा रिप्लाई पण नाही आहे, काय प्रॉब्लेम काय है, एनीथिंग सीरियस, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, भरत भी चुप है, किरण भी चुप है, भाई समझ में नहीं आ रही क्या, हाँ कौशिक क्या, टू वीक्स काउंटेड मतलब क्या, टू वीक्स काउंटेड मतलब क्या, कौशिक नहीं समझा मुझे भाई, नहीं समझा, भरत समझ में आ रहा है तुम्हें, मंगेश कहते का, सेकंड का काउंटेड किधर है भाई, थर्ड होगा भाई, एक बार थर्ड होगा, सेकंड नहीं है भाई, थर्ड होगा, कुछ भी क्या बोल रहे हो, चलो आगे जाके क्या बोल रहे हैं, the vast majority of Indian children attend government-run primary school in rural area. In 2007-2009, rural India dashed for more than 77 of India's primary school students. तो क्या होगा, अकाउंट होगा, अकाउंटेड होगा, अरेंज्ड होगा, काउंटेड होगा, क्या होगा भाई इस केस में, थर्ड का आंसर क्या होगा, डेफिनेटली स्टूडेंट्स यस, थर्ड का आंसर अकाउंटेड होगा, अकाउंटेड, अकाउंटेड मतलब क्या, उतनी उसकी क्षमता थी, अकाउंटेड मतलब क्या भाई, उतनी उनकी क्षमता थी, ओके, काउंटेड नहीं, रूरल को काउंट नहीं किया है, अकाउंटेड, उसमें उतने थे, उसमें उतने थे, ओके, अकाउंटेड का मतलब क्या होता है, उतने लोग उसमें थे, ओके, क्षमता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्षमता की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी, रूरल इंडिया के स्कूल की कैपेसिटी कितनी थी भाई, तो 77% अकाउंटेड, ओके, इंग्लिश पढ़ा करो भाई, इंग्लिश पढ़ा करो, इतना आसान, एक तो मेरे हिसाब से काफी आसान है इंग्लिश, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ओके, चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते, चलो आगे क्या बोले, दिस इज वेयर वी सी सम ऑफ द नेशंस चैलेंजेस, यहाँ पर है जहाँ पर हमको सम ऑफ द नेशंस डैश चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस भाई, टफर चैलेंजेस, स्ट्रिक्टर चैलेंजेस, टफेस्ट चैलेंजेस, सिंपलेस्ट चैलेंजेस, ओके, सम ऑफ द नेशंस बोला ना भाई, सम ऑफ द नेशंस टफेस्ट चैलेंजेस होगा ना भाई, टफर चैलेंज तो नहीं होगा, ये चैलेंज टफ है बोलेंगे या फिर टफेस्ट है बोलेंगे, ओके, हियर दिस इज वेयर वी सी सम ऑफ द नेशंस टफेस्ट चैलेंजेस, टफर रहेगा तो भाई कंपैरेटिव डिग्री है, टफर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए दो चीज आना जरूरी है, टफर के लिए कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज आना जरूरी है, ओके, इसके लिए टफेस्ट होगा, टफेस्ट ये सबसे टफेस्ट काम है, ये कुछ टफ कामों में से एक है,
The India's education system has not achieved strong learning outcomes for reasons that are diverse. Diverse मतलब क्या अलग अलग, diversification मतलब क्या अलग अलग, and dash as the country itself. तो क्या है? Nuance, difference, similar या simplified. Now, the outcomes for reasons that are as diverse and difference. तो diverse and difference दोनों एक ही मीनिंग है, तो बार बार क्यों रिपीट करेंगे? For the reason that are as diverse and similar, जितने अलग और जितने एक जैसे है, जितनी कंट्री अलग और एक जैसी है. For the reasons that are as diverse and similar as the country is itself, मतलब रीजन जितने अलग अलग और एक जैसे है, वैसे ही कंट्री अलग और एक जैसी है. ओके. नुएंस का मतलब क्या है? कुछ खासियत. नुएंस का मतलब क्या है? खासियत. ओके. किसी इंसान की एक स्पेसिफिक खासियत, तो ये तो डेफिनेटली नहीं आएगा. ओके. डिफरेंस बेसिकली आपको लगेगा कि भाई डाइवर्स है तो एंड भी है तो डिफरेंस होगा, बहुत लोगों को डिफरेंस दे सकता है, लेकिन भाई कैसे? दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है, सेम ही है. तो डाइवर्स एंड डिफरेंस भी बोलेंगे, तो जितना कंट्री डाइवर्स और सिमिलर है उतना ही एजुकेशन सिस्टम ओके डाइवर्स और सिमिलर है. समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? शिवा ने कहा था. ओके. चलो, आई होप थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स. आई होप थिंग्स आर क्लियर. वेरी गुड. नेक्स्ट की तरफ चलते भाई, आगे बढ़ते हैं. चलो ये टेक क्लोज टेस्ट करते हैं. A dash factor affecting the quality of primary education appears to be dash levels of teachers' motivation. In 2002-2003, 25% of primary school teacher motivation. Okay, ये सेंटेंस गलत है, मतलब बार बार रिपीट हुआ है. वन सेकंड. इसकी शायद जरूरत नहीं है. रिपीट हुआ. In 2002-2003, 25% of primary school teachers in rural area were absent on any given day. The impact of absenteeism is dashed by the fact that the average primary school in India has a workforce of no more than 3 teachers. Okay, तो वर्कफोर्स में काफी दिक्कतें आती है, वही आती होगी. Okay. Yeah, so the impact of absenteeism is dashed by the fact that the average primary school in India has a workforce of more than 3 teachers. The obvious reason, remuneration, does not appear to be a dash. In fact, both education experts and ordinary citizens dash that government employed school teachers are paid relatively well. UNESCO surveys from early in 2004 indicated that annual statutory salary of primary school teachers in India within 15 years experience was more than $14,000. ठीक है भाई, चलो ये भी एजुकेशन के ऊपर ही है पैसेज. ओके. अभी फर्स्ट का क्या देखते हैं? इन डैश फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लिविंग. तो कौन सा अफेक्ट फैक्टर? इंपॉर्टेंट फैक्टर ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. ओके. एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैक्टर अगर अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ही होगा ना भाई. Okay, the important factor affecting the quality of primary education appears to be dash levels of teacher. Appears to be क्या? Appears to be high levels of teachers' motivation, acute level of teachers' motivation, low level of teacher motivation.
अरे लो लेवल आएगा भाई, लो लेवल। क्यों? आगे जाके देखो ना, 25% ऑफ स्कूल टीचर्स एब्सेंट होते हैं। अगर टीचर का हाई लेवल रहता, तो टीचर का मोटिवेशन हाई होता क्या? डेफिनेटली नहीं ना, लो ही होता ना। लो है इसके लिए तो एब्सेंट होता है। टीचर का मोटिवेशन लो है इसीलिए तो एब्सेंट होता है। So the important factor affecting the quality of primary education appears to be low levels of teacher motivation. हाँ, तो मैंने अभी 3 बार चिल्लाया, सीटर 3 बार मैंने चिल्लाया। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? चलो वापस से बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सी शीतल क्या बोला है? एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन appears to be dash levels of teacher motivation. तो अभी आगे जाके पढ़ने के बाद समझ में आता है कि 25% तो स्कूल टीचर एब्सेंट है भाई। अगर 25% स्कूल टीचर एब्सेंट है तो टीचर का मोटिवेशन थोड़ी ना हाई होगा, टीचर का मोटिवेशन लो होगा। ओके, आगे जाके समझ में आता है कि मोटिवेशन है कि नहीं है। ओके, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रीडिंग। अगर कुछ समझ में हमें जब नहीं आता है कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो आगे का कॉन्टेक्स्ट समझ देखने के बाद हमें समझ में आता है कि वहां पर क्या फिट हो रहा है। ओके, चलो। इन 2002 2003, ओके, जैसे मैंने बोला, हाँ भाई कम है। The impact of absenteeism is dashed by the fact that average primary school in India has a workforce of no more than 3 teachers. The impact of absenteeism is क्या? Exacerbated है। Exacerbated मतलब क्या? Exacerbated मतलब aggravate। Aggravate मतलब to increase। Exacerbate मतलब to increase। Okay. So the impact of absenteeism is increased है क्या भाई? Is increased by the fact है क्या? Married by the fact है क्या? Stated by the fact है क्या? या witnessed by the fact है क्या? The impact of absenteeism is dashed by the fact that the average primary school in India has a workforce of no more than 3 teachers. तो क्या होगा इन चारों में से? क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू फील? Okay, the impact of absenteeism is dashed by the fact witnessed। भाई witnessed आएगा। witness मतलब देखता हूँ, समझ में आ रहा है भाई witness। Okay, the impact of absenteeism it witnessed by the fact that the average primary school in India has a workforce of no more than 3 teachers। तो ये witness हो रहा है ना भाई कि 3 टीचर से ज्यादा लोग नहीं आ रहे। स्टेट थोड़ी ना हो रहा है, वो विटनेस हो रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि भाई 3 से ज्यादा लोग आ ही नहीं रहे। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? See students, I'm trying my best to help you in terms of close test. Okay, and I'm also trying my best to motivate you कि भाई आप भी अपने साइड से उतना ही एफर्ट्स लो जितना मैं आपको सिखाने की एफर्ट्स दे रहा हूँ। ओके, जितना मेरा काम है एफर्ट्स लेके सिखाना, उतना ही आपका काम है एफर्ट्स लेके वो सीखना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई बेस्ट। ओके, क्योंकि मतलब मैं बड़ा नहीं करूंगा लेकिन इतना सब प्रैक्टिस। ओके, क्लोज टेस्ट छुड़ाओ, ये छुड़ाओ। कोई बहुत सारे क्लास ये लेते नहीं, वो बोलेंगे कि भाई आप अपने घर पर ही करो। ओके, बट आई यूजुअली टेक दिस सेशन बिकॉज़ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स आदमी की लाइफ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अगर मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसके ऊपर 2-3 लेक्चर ले रहा हूँ तो आपका भी एफर्ट्स दिखना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल आई वांट टू से। नाउ लेट अस मूव अहेड। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। आगे जाके देखो क्या होगा। चलो आगे को बताओ भाई।
the obvious reason remuneration does not appear, मतलब obvious reason remuneration मतलब क्या, पैसे, remuneration मतलब क्या, पैसे, does not appear to be a dash. Okay. क्या लगता है, the obvious reason remuneration does not appear to be a presence, forcing, driver, reckon. क्या होगा, the obvious reason remuneration does not appear to be a forcing, driver, reckon, जो भी, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? कुछ ने आंसर दिया है करो, चलो, ओके ओके। पहली बात तो the obvious reason remuneration does not appear to be a presence, तो forcing तो नहीं होगा, ड्राइवर भी नहीं होगा, एक तो प्रेजेंस होगा या फिर रेकन होगा। ओके, does not appear to be a presence, it does not appear कि वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, उसका रीजन पैसा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो it is does not appear to be a presence. Okay, in fact both education experts and ordinary citizens dash that government employed school teachers are paid relatively well. तो क्या करते हैं, टुगेदर करते हैं, सेस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, कपल करते हैं, क्या करते हैं? एजुकेशन एक्सपर्ट एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस क्या बोलते हैं, सेस करते हैं कि आर्ग्यू करते हैं? पहली बात तो इनफैक्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो जब हम लोग बोलते हैं ना, अरे इनफैक्ट ये ऐसा है, इनफैक्ट ये वैसा है, तो इनफैक्ट हम कब बोलते हैं, जब हम लोग कुछ आर्ग्यू कर रहे हो, यस और नो। इनफैक्ट हम क्यों बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज के ऊपर कोई और चीज लेकर आ रहे हैं, अरे ये क्या बोल रहा है, इनफैक्ट ये ऐसा है, अरे ये क्या बोल रहा है, इनफैक्ट इसमें एक्स की वैल्यू ये डाल के आंसर आएगा, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, ऐसा हम लोग बोलते कि नहीं बोलते? ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्ग्यू आएगा, आर्ग्यू, सेज नहीं आएगा। और पहली बात तो सेज कैसे आएगा भी, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, दोनों जो नाउन है, दोनों के दोनों जो नाउन है वो प्लूरल है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, से होना चाहिए। सेज तो सिंगुलर वर्ब है, सेज सिंगुलर वर्ब है ना, तो गलत होगा ना। सेज तो सिंगुलर वर्ब है, उसके आने वाला ऑब्जेक्ट देखो ना, एजुकेशन एक्सपर्ट और ऑर्डिनरी सिटीजंस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के बाद तो से आना चाहिए था, सेज कैसे आएगा? ओके, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो आर्ग्यू आएगा, क्योंकि इनफैक्ट बोल रहे हैं ना भाई, इनफैक्ट, इनफैक्ट बोथ एजुकेशन एक्सपर्ट्स एंड ऑर्डिनरी सिटीजंस आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड स्कूल टीचर्स आर पेड रिलेटिवली। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट स्टूडेंट्स? मंगेश, कविता, तौसिफ, शीतल? देखते एक बार आगे क्लोज टेस्ट करने का टाइम है कि नहीं। चलो छोटा वाला है, फटाफट अगर हुआ, नहीं भाई 10 वाला है भाई, ये 10 वाला है, रुको, नहीं नहीं, ये भी 10 वाला है, आगे के सब बड़े हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम लोगों ने आज कम से कम 5-6 क्लोज टेस्ट देखे और काफी बड़ी बात है, इतने क्लोज टेस्ट मेरे लेक्चर में कभी नहीं हुए। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू कि भाई now focus more on reading. ओके, अपनी vocabulary बढ़ाओ। ओके, फोकस मोर ऑन रीडिंग, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ। वोकैबुलरी मतलब क्या, इस चीज का मीनिंग क्या होता है, उस चीज का मीनिंग क्या होता है, ये अपने आप से ढूंढने की जरा कोशिश करो। ये अपने आप से ढूंढने की जरा कोशिश करो। मैं भी आपकी उसमें मदद करूंगा, लेकिन अभी नहीं, सबसे एंड में मैं आपको वोकैब का भी शीट दूंगा। मैं आपको वोकैब का भी शीट दे दूंगा, मतलब पीडीएफ दे दूंगा। ऑब्वियसली शीट मतलब पीडीएफ दे दूंगा। ओके, लेकिन तब तक आप अपने साइड से एफर्ट्स दे लो, तब तक आप अपनी साइड से भी एफर्ट्स लगा के रहो। ओके, मैंने क्लोज टेस्ट अभी इसके लिए लिया क्योंकि आपको आइडिया आना चाहिए कि नहीं, आई विल हैव टू इम्प्रूव। अगर इम्प्रूव करना है तो किस चीज में इम्प्रूव करना है। ओके, definitely we are all here to improve ourselves, but in which sense should we improve, that is also the most important thing. Okay, so I hope students आपको ये सेशन पसंद है कि नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ। और दूसरी बात मुझे ये भी बताना है कि ये जो मैं मतलब क्रूज टेस्ट ले रहा हूँ, एक्टिव पैसिव का लास्ट टाइम मैंने सेशन लिया, प्रैक्टिस सेशन लिया था, तो उसके बाद वापस से और एक प्रैक्टिस सेशन आएगा एक्टिव पैसिव पे, नरेशन पर भी एक सेशन लेने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, डू यू रियली वांट मी टू टेक दोस सेशंस? आप चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊं कि आप खुद से करना चाहते हो? यू वांट मी टू practice it in the lecture itself, or you want to do it by yourself? Okay, it depends कि आप कितना रिप्लाई दे रहे हो। ओके, कोई कुछ खास रिप्लाई तो दे नहीं रहा है। सिर्फ 2 रिप्लाई है मुझे, बाकी के लोग सो गए हैं क्या? ओके, अरे मैं बात कर रहा हूँ, ये शीतल में तो समझ में आ गया, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? किरण, ओके सो गई हो क्या? अश्विनी, व्हाट अबाउट यू? लीस्ट बॉदर्ड टू रिप्लाई। भरत भी लीस्ट बॉदर्ड है भाई, क्या हुआ, सो गए हैं क्या? ओके, डेफिनेटली। ओके, तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट सेशन जो आपका रहेगा वो भी क्लोज टेस्ट पर रहेगा। ओके, सो टिल देन व्हाट आई वांट यू टू डू दैट, रीड न्यूज़पेपर्स रीड जितना करोगे। ओके, अभी कितना रीड करना है, 1-2 घंटा रीड नहीं करना है, हार्डली 15-20 मिनट्स रोज निकालना है। 1-2 घंटा रीड नहीं कर रहा है, सिर्फ 15 से 20 मिनट आपको न्यूज़पेपर रीड करने हैं। तो आपको डेफिनेटली उस न्यूज़पेपर का अंडरस्टैंडिंग होता है कि लैंग्वेज किस हिसाब से जाती है। Okay, definitely, Tausif, I will definitely get it done. Okay, next lecture is practice on close test, जैसे आज हुआ।